Hi, today we will learn a poem Somebody's Mother on page number 30. Author of this poem is Mary D'O'Brien. I will read the poem first. Listen. Somebody's Mother. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter's day. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone uncared for amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, come the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horses' feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. He paused beside her and whispered low, "I will help you across, if you wish to go." Her aged hand on his strong young arm she placed, and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand? If ever she is poor and grey, when her own dear boy is away. And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, "God, be kind to the noble boy, who is somebody's son and pride and joy." Mary D'O'Brien. Now listen. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter's day. यहाँ पे ये बताया कि जो सड़क थी वो गीली थी और बर्फ गिरी थी. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. जो उस बूढ़ी लेडी के पैर थे वो बहुत बासुर और स्लो थे, बूढ़े और स्लो लग रहे थे. She stood at the crossing and waited long, alone uncared for amid the throng. वो सड़क के एक किनारे पर गड़ी थी और लंबे समय से वेट कर रही थी. जो भीड़ थी लोगों की भीड़ थी उसके आसपास उसको किसी को केयर नहीं थी. Of human beings who passed her by, जो क्राउड उसके आसपास से निकल रहा था, नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हेयर एंग्शियस आई, जो उसके आईज एंग्शियस आईज उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं कर रहा था. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, वो जो स्ट्रीट होती है सड़क के बाहर हंसते हुए चिल्लाते हुए एक ग्रुप आया. ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, जैसे ही उसको स्कूल से फ्रीडम मिली होती है. कम द बॉयज लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, एक लड़कों का ग्रुप आया. हियर फ्लॉक ऑफ शीप रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ बॉयज. Okay, group of boys. Hailing the snow piled white and deep. हवा जो बर्फ़ होती है उसे बर्फ़ से भरा था. बर्फ़ इतना ज़्यादा हुई थी कि जो उतनी डीप हो गई थी. बर्फ़ बहुत ज़्यादा था. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. उस वुमन के पास जो बूढ़ी थी और ग्रे थी, बच्चे उससे पास से निकल रहे थे. नॉर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने
किसी ने भी उसको ऑफ़र नहीं किया हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग हैंड नहीं बोला। सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टिर, वो चुप थी, डरी हुई थी, वो मूव करने से भी डर रही थी। लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हेयर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, उसको ये डर था कि जो सड़क स्लिपरी है, स्नो के वजह से गिली हुई है। उस वुमन बहुत डरी हुई थी, अफ्रेड हुई थी। लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हेयर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, मतलब वहाँ पर वो किसी हॉर्स के पैर के नीचे और किसी कैरेज के नीचे से आवाज़ आई। एट लास्ट केम वन ऑफ द मेरी ट्रूप, मेरी ट्रूप होता है कि ये एक हैप्पीएस्ट ग्रुप आया, लास्ट में एक हैप्पीएस्ट ग्रुप आया। द गेस्ट लाडी ऑफ ऑल द ग्रुप, जो बच्चों का ग्रुप था। He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. उस ग्रुप में से एक लड़का था, वो बिल्कुल उसका पास रुका, उसकी पास रुका, वो वुमन की पास रुका और उसने धीरे से बोला, मैं आपको क्रॉस कराने में हेल्प करता हूँ अगर आप जाना चाहते हो। I will help you across if you wish to go. Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. वो लड़का यंग था, उसका आर्म स्ट्रॉन्ग था और जो लेडी थी उसकी हाथ एज्ड हाथ है जो उसने पकड़ा, लड़का ने पकड़ा। He guided the trembling feet along. उसने उसको सड़क पास करवा दी बिना किसी हर्ट की और नुकसान की, मतलब हार्म की। उसको सड़क पास करवा दी, क्रॉस करवा दी। प्राउड दैट हिज ओन वेयर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, वो कांपते हुए पैरों के साथ उसका जो वो गुद्दा वो स्ट्रॉन्ग था। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. उसने सड़क क्रॉस किए, उसको सड़क क्रॉस करवा के वो वापस अपने ग्रुप में आ गया। उसका वो हेड था जो बहुत खुश था, वो खुद को सैटिस्फाई फील कर रहा था। She is somebody's mother, boys, you know. For all she is aged and poor and slow. वो ग्रुप में आकर कहते हैं, क्या तुम जानते हैं ये किसी को माँ है, वो एज्ड, पुअर एंड स्लो है। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड ए हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। वो इसमें ये कहना चाहता है कि मैं अगर अपनी माँ के पास नहीं होता तो शायद कोई मेरी माँ को भी वैसे ही हेल्प करेगा। इफ एवर शी इज पुअर एंड ग्रे व्हेन हेयर ओन डियर बॉय इज अवे, यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, अगर वो बूढ़ी और गरीब है तो जब उसका अपना खुद का वो लड़का है जो उसके दूर हो, जैसे मैं अगर अपनी माँ के पास नहीं होता तो शायद कोई मेरी माँ को भी वैसे ही हेल्प करेगा। लास्ट स्टैंजा, एंड समबडीज मदर बोर्ड लो हेयर हेड इन हेयर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड वाज, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। और उस रात को जो वो किसी की माँ थी उसने प्रेयर की उस नोबल लड़के के लिए, दयालु लड़के के लिए, वो भगवान दयालु रहे, जो किसी का लड़का है उसको खुशी और प्राइड मिले। ओके, सी in this poem we have learned about that we should help others
So then someone also help us. हमें दूसरा लोगों को मदद करना चाहिए. We should help others. See you later. Thank you.